So yesterday in previous class we have seen what VT graphs. So VT graph for when the object was at rest, when the object was moving with uniform speed or velocity, right? And we are going to check when the object. So actually we was saying what case two when object was moving with uniform speed or velocity. So most of the students got the wrong answer. Only few students got the correct answer because they just wrote the uniform means straight line while uniform slope means a straight line. So here the speed or velocity, whenever velocity speed or velocity time graph or speed time graph will be there, then slope of VT graph will always represent what? Always we need to keep it in mind that whenever VT graph will be given to us, right? Then what should be the slope of VT graph? So it should be change in velocity upon change in time, and that means the acceleration. It means whatever graph will be there, the slope of VT graph simply means acceleration. So if uniform slope, whenever some word will come, uniform slope of VT graph, that means what? Whenever the word will come, uniform slope of VT graph. So slope of VT means what do you need to represent slope of VT? Acceleration. So what is the meaning of that? Uniform acceleration. Got it? But in this case, we didn't talk about the uniform acceleration. We talked about uniform speed or uniform velocity. So if I'll keep the velocity fixed, let's suppose x meter per second, 15 meter per second, whatever, 6 meter per second, that every second its speed or velocity should be same. That's why the graph will be uniform velocity. And here the name of graph will be now, name of graph will be constant line. Constant line. It's not the straight line. If you talk about straight, then you have to write the wording a straight line parallel to time axis, or simply a line parallel to time axis. Always remember, in that way you need to write. Second, the slope of VT graph. So you can say at the beginning we will be checking it. Slope of the graph means, so wherever it will be written, slope of the graph, acceleration. All right. Since velocity is constant, so here the slope of VT graph, that means acceleration should be V2 minus V1 upon T2 minus T1. That means V minus V. For example, if I say, let's suppose this is the point A, this is the point B, then at point A, velocity should be 15 meter per second, velocity B, velocity at point B, 15 meter per second. So V2 minus V1, V minus V, same velocity, but at different timings. That's why the velocity should be 0, but time is not 0. But final answer 0 point something should be 0. It means what? Slope of VT graph, that is acceleration, will be 0 for constant velocity. All right? For constant or uniform velocity. All right. So it's compulsory A is equals to 0 means you are talking about the velocity, not speed. Because certain times, if speed is uniform, but its direction is changing, then that kind of a speed will be uniform, but velocity will not be. In that case, acceleration will not be 0. So here, whatever case we have discussed, A is equals to 0, we have also assumed that along with the speed, direction is also phased in such a way that velocity is uniform. So whenever velocity will be uniform,
its acceleration will be 0 because acceleration is defined only and only for change in velocity. If there is no change in velocity, no acceleration would be produced. If there will be change in velocity, then and then acceleration will be produced. So for uniform velocity, you are drawing the graph for Vt, velocity time graph, then it would be a constant line. Got it? It's not a straight line, that oblique straight line. Right? So let's talk about the next case number 3. Case number 3. Once again. So let's suppose case 3, when object is moving with non-uniform velocity. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब स्पीड की जगह मैंने ले लिया डायरेक्टली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, तो इसके अंदर भी फर्दर 2 केसेस कैन बी ड्रॉन. एक केस तो बनेगा जिसके अंदर वेलोसिटी में जो चेंज है, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेकिन जो वेलोसिटी चेंज हो वो एक सिस्टमैटिक मैनर में चेंज हो, है ना. 10 मीटर पर सेकेंड, फिर चेंज हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर चेंज हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, फिर चेंज हो गई 40 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म. सो केस, इस केस 3 का सब केस है ना, सब केस 1. If velocity is changing, but change in velocity for each time interval. Change in velocity delta v for each time interval is same. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका एक मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा हमेशा. एक कार है, ए पॉइंट पर थी, राइट नाउ चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बी पॉइंट पर पहुंच गई टी टाइम बाद. ठीक है, और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और अब हो गई 20 मीटर पर सेकेंड. आप टी को चाहो तो 5 सेकेंड मान लो, 10 सेकेंड मान लो, 2 सेकेंड मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो. 5 सेकेंड मान लो, 1 सेकेंड मान लो. फिर नेक्स्ट टी टाइम बाद इसकी ऑब्वियस सी बात है कि अब स्पीड बढ़ जाएगी तो सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल की जाएगी भाई, है ना. ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आगे चला गया. ये हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर, नेक्स्ट टी टाइम के अंदर. तो ये डिस्टेंस छोटी है ए से बी की. आप चाहो तो उसको अब मैं यहाँ वैल्यू नहीं दूंगा क्योंकि वो फिर कैलकुलेशन के बेस पे लिखनी पड़ेगी, रैंडम वैल्यू भी ऐसे नहीं लिखी जाएगी. तो ये इस तरह का कुछ है. तो यहाँ पे दिख रहा है हमें इनिशियली v1 थी, v2 थी, v3 हो गई. तो अगर मैं शुरू में इन दोनों में चेंज इन वेलोसिटी पूछूं, पहला डेल्टा v1 तो ये आएगा 20 माइनस 10 10 का, और v2 और v3 में पूछूं तो डेल्टा v2 आएगा सेकेंड टाइम चेंज 30 माइनस 20 10 का, 10 मीटर पर सेकेंड का. तो इसका मतलब वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस इक्वल है, जबकि हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसके वैल्यू में चेंज आ रहा है. लेकिन वो जो चेंज आ रहे हैं, चेंज यानी कि वेलोसिटी के जो गैप्स हैं वो इक्वल तरीके से चेंज हो रहे हैं. तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये टी टाइम, ये वेलोसिटी, ये हमने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड. इक्वल इंटरवल्स बनाने भाई जितना बनाए उसी तरीके से 10 मीटर पर सेकेंड,
30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये 0 मीटर पर सेकेंड कब t इज इक्वल टू 0 पर, और ये कहानी स्टार्ट हो रही है 0 से। एंड लेट्स सपोज ये टाइम इंटरवल है, तो टाइम एक्सिस ये 1 सेकेंड 1 सेकेंड के ले रहा हूं यहाँ पे ताकि इजीली आपको समझ में आता रहे। 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, सो 5 सेकेंड, t इन सेकेंड, v इन मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम बनाते हैं, इस वाले ये जो सिचुएशन थी इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। आपको बोला गया कि अगर कोई कार इस तरह से मूव कर रही हो, इसको वर्डिंग में लिखा हो या डायग्राम में लिखा हो, तो ग्राफ पे प्लॉट करके बताओ। तो वो जो चीज बन रही है उसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक, आप चाहो तो अब यहाँ पे 1 सेकेंड ले लो, क्योंकि मैंने ग्राफ में 1 सेकेंड लिया हुआ है, तो 1 सेकेंड के गैप। तो सर, हाँ जी सर ये गाड़ियां भी बनानी है। तो 1 सेकेंड के अंदर, मतलब उसी सिचुएशन को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप बनाएंगे तो आपको बाद में जब रिवीजन करोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा इसी का ग्राफ ये बना है, और फिर आपको उसका नेचर समझ में आ जाएगा। तो 1 सेकेंड पर शुरू में t इज इक्वल टू 0 पर आप मान सकते हो कि ये यहाँ पे रही होगी, ये इस जगह पर, ये या यहाँ से स्टार्ट कर लो t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, ये a पॉइंट का मतलब t इज इक्वल टू 1 आ गया, b का मतलब t इज इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ पर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो गए, और इनिशियली अभी कार रेस्ट पर है। ठीक है, तो ये आप देख लो, इसको फिर v1 यहाँ बोल दे, v1 0 हो गया, v2 v3 है ना, v4, इस तरीके से चीजें चल रही है, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इनिशियली गाड़ी रेस्ट पर थी, कार वाज एट रेस्ट, सो पॉइंट विल बी एट 0। 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ग्राफ कहाँ पे आएगा 10 और 1 पर। इसका मतलब 10 से एक लाइन हॉरिजॉन्टल, एक लाइन वर्टिकल जो 1 पर मीट करे, फिर 2 पर, 2 सेकेंड बाद वो कितनी उसकी स्पीड वेलोसिटी हो चुकी है 20, फिर 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 30, फिर 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 40। इन ग्राफ को अगर ज्वाइन करें तो अब आपको देखो पॉइंट्स जो दिख रहे हैं उनसे समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसा आया है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जैसा ये ग्राफ आया वहीं पे मैं 4 सेकेंड बना देता हूं। तो ये ग्राफ आया इसका, ठीक है। इससे क्या समझ में आया, इसको आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के नाम दे सकते हो, ए बी सी और ओ। तो ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी पॉइंट। पूरा ग्राफ, वो पूरा जो डायग्राम है ये ग्राफ के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या क्या पता चलेगा, तो सबसे पहले इसका नेचर देखें, तो इसका नेचर कैसा आ रहा है, इसके सामने आप जो ग्राफ बनाओ या नीचे बना लेना, वी टी, और नेचर आया है ये वाला। ठीक है, नेचर इज दिस वन। तो इसका नेचर कैसा है, जैसा वी टी, ये ऑब्लिक लाइन। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे कि ऑब्लिक लाइन इसका नेम ऑफ ग्राफ, ग्राफ का नेम, तो सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी लाइन ऑब्लिक लाइन बनेगी इसका नेम ऑफ ग्राफ, एनओजी बोले तो नेम ऑफ ग्राफ, इस ग्राफ का नेम क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम ये चीज लिख देते हैं यहां पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राफ। जैसे आपका नाम कुछ और होता है, मतलब कुछ और, मतलब जो भी नाम होता है, मेरा नाम है, ऐसे इस ग्राफ का नामकरण संस्कार हमने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आगे भी बोलना होता है स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ द ग्राफ। जो भी ग्राफ होता है उसकी यूनिफॉर्म स्लोप को, और यहां पर जो स्लोप है तो वो है यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। किसका ग्राफ, वीटी का ग्राफ। और हमने पहले से ही देख रखा है कि जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है, स्लोप निकालने का तरीका भी बता रखा है
y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी माइंड में कर लो चेक। y एक्सिस पे लिखा हुआ है वेलोसिटी और x एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम, तो या तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या ये कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी होती है? बिल्कुल होती है। कौन होती है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और ये क्या देती है हमेशा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही होती है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब जब भी आप स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ बोलोगे तो उसका मतलब आप क्या समझोगे? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रोड्यूस करेगी? क्या आपको देगी? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ यहां कौन सा चल रहा है? वीटी ग्राफ। यूनिफॉर्म स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो उसको आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म। और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ तो हमें पहले से ही पता है कि इसको क्या बोलता है? एक्सेलरेशन। तो यहां लिखोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब सेकंड अगर पॉइंट में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ is about to give us what? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो देगी, लेकिन क्योंकि स्लोप यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं, स्लोप इज यूनिफॉर्म। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्लोप है यूनिफॉर्म, तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यूनिफॉर्म चीज को। किसकी यूनिफॉर्म? स्लोप को। स्लोप कौन? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। थर्ड, अच्छा इसके अंदर, ठीक है, यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ। थर्ड, इसमें हम एक चीज और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई सा भी ग्राफ दो चीजें देता है, दो चीजें दे सकता है, देता है ना, दो चीजें दे सकता है, एक स्लोप और एक एरिया। स्लोप निकालते हैं किस तरीके से? y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी, है ना। डजंट मैटर अब 9th में आपने नहीं सीखा हो, 11th आप सीख रहे हो, ये सीखोगे, ये सब उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जहां जोन सी क्लास में हो आपको वहां पे सीखना होता है ये, ठीक है। 9th में हो तो 9th में सीखना चाहिए था या सीखना है, और 11th में हो तो 11th में सीखना है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ का मतलब y एक्सिस की क्वांटिटी इनटू x एक्सिस की क्वांटिटी। तो इन जनरल देखिए कि ग्राफ कैसा भी होता, ग्राफ अभी हम नहीं जा रहे कि किस शेप का आएगा, हम तो बस बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता या स्पीड टाइम ग्राफ होता, दोनों में से जो भी चीज लिखी होती। तो इसका एरिया कैसे निकालते? y एक्सिस की क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस की क्वांटिटी। तो y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ मिलता? स्पीड। अगर देखूं तो स्पीड के अकॉर्डिंग देखोगे तो y एक्सिस पे स्पीड है इनटू टाइम, और देखते हैं कि स्पीड इनटू टाइम कुछ होता है क्या। तो ये कैसे पता चलेगा कि कुछ होता है? ठीक है, कुछ होता है, ये कैसे पता चलेगा? आपको देखना पड़ेगा कि स्पीड और टाइम से रिलेटेड कोई फॉर्मूला होता है क्या। तो आपने पहले फॉर्मूला देखा, स्पीड और टाइम से रिलेटेड कोई फॉर्मूला? बिल्कुल होता है साहब। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या यहां से स्पीड इनटू टाइम बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। इसको देखा तो स्पीड के साथ टाइम को मल्टीप्लाई किया, स्पीड इनटू टाइम, और ये आंसर क्या मिल रहा है? डिस्टेंस। इसका मतलब एरिया, अगर आप इस स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालते तो वो एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता? डिस्टेंस को। इसका मतलब अगर ये ग्राफ है और इससे डिस्टेंस निकालना है तो वो एरिया कहां पे होता है? एरिया अंडर द टाइम एक्सिस। इस चीज का और ध्यान रखना है, ये एरिया किसके अंडर वाला निकालते हैं हम? अंडर द टाइम एक्सिस। जिधर टाइम एक्सिस होगी उधर की तरफ आप एरिया शेड करोगे, तो आपको उस जगह तक, जहां तक का एरिया आप शेड करोगे टाइम एक्सिस के अंदर अंडर, वहां तक की आपको डिस्टेंस मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट इस सेकंड ग्राफ को पकड़ूं, है ना, कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो कोई पूछता कि कितनी स्पीड आई, कितनी डिस्टेंस हुई बी पॉइंट तक, तो 0 से बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो मैं क्या करता, इसको एक शेडिंग यहां तक करता और दूसरा शेडिंग यहां तक करता। ये मेरा हो गया क्या? ये जो शेडिंग, शेडेड एरिया बना, यही मेरा क्या है? डिस्टेंस। यानी कि इस एरिया को निकाल लो, ये एरिया जो निकलता वो कहलाती है डिस्टेंस। अभी इस पे क्वेश्चन बाद में देखना, है ना, बाद में अभी हम देखेंगे तो
करवा देंगे, या एक वैल्यू लेकर के यही करवा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 है, और ये t इज इक्वल टू 1, ये t इज इक्वल टू 2, और ये t इज इक्वल टू 3 b पर, है ना, और ये हमने 15 मीटर पर सेकंड मान ही रखी। तो ये यहां से यहां तक की हाइट कौन सी कहलाई? 15। तो ये तो हो गई 15, ठीक है, यूनिट वाइज लिखोगे तो मीटर पर सेकंड। और यहां से यहां तक ए से बी तक कितना चल रहा है? 3 क्या सेकंड, तो 3 सेकंड। तो ये ध्यान से देखे तो ये एक रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल क्या बना? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया, इस ग्राफ से एरिया क्या मिलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जिस शेप का ग्राफ हो उस शेप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे शेप कैसा दिख रहा है? लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, 15 और 3 है, तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं 15 इंटू 3, तो 15 देखो क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड, इंटू 3 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाता, मीटर बचता, और 15 इंटू 3 45 मीटर। इसका मतलब 3 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट 45 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो समझ में भी आता है कि अगर कांस्टेंट स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड की, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हर 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जानी चाहिए? 15 मीटर। तो 1 सेकेंड में 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की जानी चाहिए। तो नेक्स्ट सेकेंड यानी कि टोटल 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जानी चाहिए? 30। तो 3 सेकेंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जानी चाहिए? 45 मीटर। क्या हमारा एरिया वही चीज दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लिख करके आप सामने क्या लिखोगे? एरिया, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस के लिए गिवन ग्राफ का क्या निकालते हैं जिससे डिस्टेंस मिले? एरिया। एरिया किसका निकालोगे? जो शेप दिख रहा होगा उसका। अब मान लीजिए यहां से यहां तक का पूछे, जैसे 0 से b तक का, तो 0 से b को मैं अगर शेड करूं तो मुझे जो एरिया नजर आएगा वो नजर आएगा ट्राइंगल का। तो अगर 0 से b तक 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, अगर मैं इसको स्पीड टाइम ग्राफ मानूं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया होता है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया। अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। आपको सोचिए, वाई एक्सिस पर अगर मैं वेलोसिटी लिख दूं तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वो क्या हो जाता? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट मिलता। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया तो देगा डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम का एरिया देगा डिस्टेंस। ये दो चीजों में आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? ठीक, तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। नेम ऑफ ग्राफ हो गया इसका स्ट्रेट लाइन। स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, जो उसने दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वीटी ग्राफ का स्पीड टाइम मानोगे तो डिस्टेंस मिलेगी, और अगर एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलोगे तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए वीटी ग्राफ दे रखा और उससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो जो भी ग्राफ का शेप नजर आ रहा हो, सबसे पहले तो उसको जहां तक पूछा है, बी पॉइंट तक पूछा है, तो उसको शेड कर दो टाइम एक्सिस की तरफ, और फिर देखो वो शेप कैसा नजर आ रहा है। जिस तरह का शेप नजर आ रहा हो उस तरह का एरिया का फॉर्मूला लगा दो, तो वो एरिया ही आपको रेस्पेक्टिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ के लिए। वीटी ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टाइम एक्सिस की तरफ एरिया शेड कर दो, और उस गिवन एरिया का जो शेप दिख रहा हो उसका फॉर्मूला लगा दो। ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। जैसा शेप वैसा फॉर्मूला, ठीक? चलिए, यहां तक अच्छे से समझ में आ ही चुका है सभी को।